So Ayushmann, tell me, when you heard the song for the first time, why did you why did you come up and why did you want to sing? Because this is not a part of your film, and still you were very keen to sing it. The best part is thanks to Mr. Bhushan Kumar and T Series that they're promoting non-film music. एक era था 90s में जब non-film music बहुत अच्छा कर रहा था. I think he's brought back that era again. I think he's promoting Yo-Yo, he's promoting me. I think ideally every singer actor should come forward and cut a single. I think non-film music के लिए काफी अच्छा होगा. Thanks to T Series for that. Big hand for T Series, ladies and gentlemen. And this song is about love, rain, nostalgia. It's about everything you remember from your past. I think it'll be a homecoming anthem for everybody. This is the festive season, and that's about it. And thanks to दिवाली की tickets book करा लो. लेकिन हुमा कुरैशी, thank you so much. आप हमारी इस गाने का हिस्सा बनी. The beautiful history of the song. Huma Qureshi, ladies and gentlemen, over to you. Thank you so much. Matlab, I had gone to meet Bhushan sir and he told me, he made me hear the song actually, and I really loved it. And Ayushmann और मैं मतलब हमने एक ही साल debut किया था, Gangs of Wasseypur, and Vicky Dona had released in the same year, and I loved his voice. I thought, of course, he's a very talented actor and a very, very good musician. So I think it's a very sweet video, and it's a lovely song, and I hope everyone enjoys it. Explain my reason as well. लव शब्द चिकन खुराना मैंने देखी थी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें खुराना था, लेकिन जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे लगा कि उसमें तो यार खूबसूरत हुमा कुरैशी हैं. चीज़ आई फाउंड रियली रियली अमेजिंग इन द फिल्म. और उसके बाद मैंने कहा हमारा तो गाना पंजाबी है, एंड हुमा लुक सो पंजाबी, शी इज़ सो ब्यूटीफुल. उन चेहरे से बात करती हैं, और इस गाने के वीडियो में भी आपको लगेगा कि इनका चेहरा कितना बोलता है, इनकी आंखें कितनी बोलती हैं. दिस इज़ अमेजिंग. सो थैंक्स हुमा फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द सॉन्ग. Thank you so much. Good evening, everyone. Actually, जब भी we used to launch any film songs, everybody used to ask me कि आप नॉन फिल्म एरा को कब वापस लाएंगे. 90s में आप इतने गाने करते थे. तो that thing we started from Yo-Yo Honey Singh. That was singles जो हमने Blue Eyes किया था. And इसमें आप सब लोगों का हमें सहयोग चाहिए, because it is not possible without the media support. Because नॉन फिल्म एक ऐसा जॉनर है जो बहुत 90s में बहुत ज़्यादा फेमस था, but because of the new platforms of radio and television and all, where the support was not there, but I took this initiative to take this forward. So I want everybody's support in this, and I hope to launch new artists also in this single format. Thank you very much. ਜਦੋਂ ਅੰਬਰਾਂ ਬਰਸਿਆ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ. ਚੱਲ ਮੁੜੀਏ ਸਜਣਾ, ਚੱਲ ਮੁੜੀਏ ਬੰਦਿਆ, ਚੱਲ ਮੁੜੀਏ ਉਸ ਰਾਹ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੀ ਖੁਦਾਈ. ਜਦੋਂ ਅੰਬਰਾਂ ਬਰਸਿਆ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ. Thank you so much. मिट्टी की खुशबू जब भी बात होती है, यू थिंक अबाउट योर नियर एंड डियर वंस. उस जगह को याद करते हैं जो आप छोड़ कर आए हैं. जैसे अमित ने पहले बोला था कि हम सब बॉम्बे से बाहर से हैं, स्पेशली जो टीम हमने बनाया है ऑन ग्राउंड जो थे, एंड वी हैड अ सर्टेन ड्रीम इन आवर आईज कि बॉम्बे आके कुछ करेंगे. लेकिन जब भी हम इफ़ यू लुक बैक नाउ, फ्लैशबैक में जब जाते हैं तो मिट्टी की खुशबू आती है. इनफैक्ट दिवाली पे हम सब चंडीगढ़ जाएंगे, मैं जाऊँगा, शायद रोचक नहीं जाएगा, बट वी रीविजिट आवर प्लेस एंड वी थिंक अबाउट इट अगेन एंड अगेन. वट एवर वी आर राइट नाउ, our identity is about that place, because of that place, and that's मिट्टी दी खुशबू. यार पहली बारिश जब होती है ना तो मतलब उसका अलग ही मज़ा होता है. आई थिंक मैं दिल्ली से हूँ और वहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं. तो जब बारिश होती है तो पहली बारिश, आई थिंक इट जस्ट रिमाइंड्स यू लाइक आयुष्मान सर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, and it always takes you back to all the sweet, bittersweet memories. I think this song also is about those bittersweet memories कि मतलब प्यार भी है but वो शायद कहीं ना कहीं incomplete है. So it always takes you back into that memory lane. जब मैंने पहली बार ये गाना सुना था तो मुझे when I was 10 years I think, तो दिल्ली में, I am from Delhi, तो दिल्ली की याद आई थी जब हम कागज़ की बोट बना के चलाते थे. तो दैट टाइम वो जो एक
वो चीज़ मुझे एकदम कनेक्ट हुई कि वो मिट्टी की खुशबू, उस दिन रियलाइज़ हुआ है कि वो मिट्टी की खुशबू जो आती थी वो इस गाने में हमने अब डाली है, तो वो एक याद आती है गाना सुन के। आयुष्मान, आज से लास्ट टाइम बारिश में कब भीगे हैं आप, और ऐसे कितने नंबर जब मैं शूट कर रहा था गाने के कितने लिए तो बीमार मैं पड़े आप बारिश में भीगने भीगा। के बाद? हाँ, कितने कितने बीमार पड़े हैं, जैसा कि हुमा ने लास्ट टाइम मैं तभी भीगा था जब ये गाना शूट हुआ था पिछले महीने। एक बार इंडिया के बाहर भीगा, एक बार इंडिया में भीगा, तो भीगा 2 बार, लेकिन बीमार थैंक गॉड नहीं पड़ा क्योंकि 2 दिन का ही शूट था, बजट भी हमारे पास कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा था। हमने भीगते भीगते शूट किया और एक टावल स्टैंड बाय पे था, तो या भीगने में मज़ा तो बहुत आता है। मैं काफ़ी सालों बाद भीगा था। आयुष्मान, मेरा सवाल आपसे, आप गाना गाते हैं, आप एक्ट भी करते हैं, तो आगे किस चीज़ को लेके बढ़ना चाहते हैं, सिंगिंग या फिर एक्टिंग? आई थिंक दोनों। आई स्टिल बिलीव आई एम एन एक्टर हु सिंग्स, नॉट अ सिंगर हु एक्ट्स, क्योंकि अभिनय का रियाज मेरा ज़्यादा है और मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू लेंड योर वॉइस टू योर ओन कैरेक्टर, इट जस्ट एड्स क्रेडिबिलिटी टू योर कैरेक्टर एंड मे बी एज एन आर्टिस्ट। तो ऑफ कोर्स एक्टिंग एंड सिंगिंग बोथ, बट एक्टिंग फर्स्ट एंड सिंगिंग लेटर। आप मेरा ब्लॉग नया पढ़ सकते हैं अगर आपको इसका सही जवाब चाहिए तो। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग आंसर हो दैट। हुमा, आपसे जानना चाहूँगा, अभी आजकल बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड निकला है कि जो भी फिल्म आए उसमें कोई भी सिंगर या तो मेल या तो फीमेल गाना गाता ही है, तो ऐसा कुछ है आपके साथ? आप अपनी यार ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड है, मुझे तो बड़ा डर लगता है। सब लोग मतलब या तो जैसे आयुष्मान की तरह होते हैं, मतलब दे ऑलरेडी वेरी वेल ट्रेन्ड, और सो मेनी न्यू एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स, दे ऑल आर सिंगिंग। मतलब मैं तो बिल्कुल भी नहीं गा सकती हूँ, अगर कोशिश भी करूंगी तो आई थिंक ऑल्दो माय फर्स्ट फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर आई हैड सung a little song Mura, so but it was part of the scene, so it was not really like a playback song. तो but अगर एक्चुअली मुझे कहीं स्टूडियो में मतलब वो सब गाने के लिए पहुंचा देंगे तो मेरे को बहुत डर लगता है। ओके। यार, मिट्टी दी खुशबू के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इनफैक्ट ये एक्सपीरियंस रोचा के साथ पहले मेरा हुआ था जब कॉलेज के दिनों में उसने गाना लिखा था, फिर एक्सपीरियंस हुमा के साथ हुआ जो कॉलेज के दिनों में हमने अभी काम किया। ये आज थोड़े ऐसे मूड में, मस्ती के मूड में, तो उनकी कोई भी बात विच पिंच ऑफ सॉल्ट लेनी पड़ेगी, कहते हैं ना नमक की एक चुटकी के साथ। लेकिन ये अमेजिंग यार, ये गाने के पीछे इंस्पिरेशन हुआ कुरैशी, आपको पता होना चाहिए इस बात का। आयुष्मान रोज सुबह मेरे घर आते थे और मैं इनको गाने की ट्रेनिंग देती थी। और वो सांप आकर रियाज में करता था पेटी के ऊपर, और उसके बाद फिर हमने गाना कर दिया, गाना कंपोज कर दिया। कुछ दिन ऐसा मेरे पड़ोसी ने कुछ पैसे भी इनको दिए कि तुम बहुत अच्छा गाते हो बेटा, ये रख लो। मैं ट्रेन सिंगर हूँ, मैंने ट्रेन में गाता था, बिल्कुल ट्रेन में। लेकिन बाद में हुमा के लिए गाना गाया, मिट्टी दी खुशबू। 2 स्केट थे, एक अब्रॉड में मैंने शूट कर गया, फिर बाद में अकेले, क्योंकि अब्रॉड में मेरे को लेके नहीं गए, सिर्फ बॉयज सब अब्रॉड शूट करके छुट्टी बना के आ गए। लड़कियों को सिर्फ हमने करजत में शूट किया, बोल दिया पंजाब में। कितनी बड़ी कंप्लेन है, कितनी बड़ी कंप्लेन है। हाँ, जब सारी फन वाली चीजें करनी होती थी, सब बॉयज गैंग गया था थाईलैंड शूट करने, और वहाँ पे गैंग कहाँ गया था? थाईलैंड शूट करने गए थे। अमित रॉय, मैं, रोचक नहीं गया था, हरदीप और बाकी प्रोडक्शन इन सबके नाम नोट कर लिए जाए। गलत बोल दिया मैंने कुछ शायद, लेकिन नहीं, हम मलेशिया गए थे। ऑस्ट्रिया मेंशन, ऑस्ट्रिया में गए थे। बट ये गलत बात है। आई थिंक यू नो इफ दे शुड हैव टेकन द गर्ल्स आल्सो यार, मतलब हम लोग को भी लेके जाना चाहिए था। कितना अच्छा लगता है वहाँ पे, मिट्टी की खुशबू, हम लोग अब्रॉड में कहीं गाना वाना शूट करके हुआ को मिस किया, तभी तो गाना बना, मिट्टी दी खुशबू आई, नॉस्टैल्जिया तभी हुआ, नहीं तो कोई पॉइंट नहीं था। ओके, हमने वीडियो देखा, बहुत ही अच्छा था। थैंक यू वो बारिश में भीगना, नंबर मिस करना जी, कुछ उसके बारे में बताइए कि आपने तो बताया नहीं। यार, जब मैंने गाना सुना ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और आयुष्मान की आवाज़ है ही बहुत ज़्यादा अच्छी, और मतलब ही हैज़ अ वेरी क्विंटेसेंशियल रोमांटिक वॉइस, मतलब ये सुन के मतलब ऐसे प्यार हो जाता है। एंड जब मेरे को अमित रॉय जो डायरेक्टर है, नहीं सच है ज़्यादा शर्माओ मत देखो। और अमित रॉय जो डायरेक्टर ने मेरे को पूरा वीडियो का कॉन्सेप्ट सुनाया, विच वॉज इवन मोर रोमांटिक। मतलब एक गाँव का रोमांस जो सिर्फ आंखों आंखों में होता है, लड़का लड़की मतलब एक नंबर एक्सचेंज होते हैं, और वो मतलब पानी, मतलब वो उसमें बहुत कुछ था। तो मतलब आई वाज लाइक मेरे को करना कॉलेज पढ़े थे 3-4 बार फेल हुए थे। नहीं, मैं बेस्ट स्टूडेंट था कॉलेज का, कब और हुआ लिखते गए ऐसा नहीं कॉलेज में, इसलिए कि कॉलेज की कॉम्पोजिशन इतनी सारी है हमारे पास, वो धीरे धीरे आकर सामने आ रही है, इसलिए कॉलेज कॉम्पोजिशन जब तक खत्म नहीं होती नए गाने कंपोज नहीं करेंगे। लेकिन ये गाने का पहला लाइन कॉलेज में कंपोज हुआ था, उसके बाद लेटर पार्ट जो है वो रोचक का गोली ने कंपोज किया और गुरप्रीत और गौतम ने लिखा है। लिपसिंग ओके। ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਸਿਆ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ। वाह, क्या आवाज है।